ہم سب کے آقا رحمت والے داتا رحمت عالم نور مجسم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرتبے سب سے نرالے میرے سرکار کے ہیں. بولو سب مل کے. مرتبے سب سے نرالے میرے سرکار کے ہیں اور عرش تا فرش اجالے میرے سرکار کے ہیں. عرش تا فرش اجالے میرے سرکار کے ہیں اور اتنے دنیا میں کسی اور پیغمبر کے نہیں جس قدر چاہنے والے میرے سرکار کے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غوث الورا کانفرنس، علماء اہل سنت. اپنے اندر زندگی پیدا کرو کیونکہ آپ کس کی محفل میں بیٹھے ہیں؟ سرکار غوث اعظم کی محفل میں بیٹھے ہیں. اگر قدموں کی ٹھوکر لگ جائے تو مردوں کو زندگی مل جایا کرتی ہے. اس محفل مبارک میں بیٹھے ہیں سرکار غوث اعظم. آپ گھر سے چلے بھی نہیں تھے. آپ اپنے مقدر پہ ناز کریں کہ اللہ نے آپ کو کیا مرتبہ دیا ہے. آپ نے دل میں ارادہ کیا ہے کہ غوث اعظم کی محفل ہونے والی ہے, ہمیں محفل غوث اعظم میں جانا ہے. آپ گھر سے نکلے ہیں اور فرشتوں نے پہلے تیار کر لی ہے کہ اللہ کے ولی کی محفل میں جانے والے کتنے لوگ ہیں, سب کا نام شمار کر لیا گیا ہے. تب آپ یہاں پر آئے. غوث اعظم کا ذکر تو وہ ذکر ہے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک میں نہیں چاہتا کسی کی زبان پہ میرا نام آتا ہی نہیں. جب تک میں نہیں چاہتا تب تک کسی کی نام کسی کے زبان پر میرا نام نہیں آتا. اور میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ جب تک غوث اعظم نہیں چاہتے کوئی ان کی محفل میں بھی نہیں آتا ہے. جسے چاہا در پہ بلا لیا اور جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. یہاں آپ آئے ہیں, آپ اپنی قسمت پہ ناز کریں اور خاموشی کو توڑ دیجئے. اب یہ خاموشی نہ رہے. میں دیکھ رہا تھا بہت ساری نعتیں ہو رہی تھی, منقبتیں ہو رہی تھی, آپ خاموش تھے. ایسا لگ رہا تھا جیسے آپ لوگ بھی اچھے دن کے انتظار کر رہے ہیں. الحمدللہ دیکھیے ہمارے کچھ پرانے دوست بھی ہیں جن کے ساتھ میرا بچپن گزرا ہے. آج میں آپ کے روبرو ہوں اور مجھے بولنے میں بڑا سوچنا پڑ رہا ہے. یہاں کتنے لوگ ہیں جو اچھے دن کا انتظار کر رہے ہیں؟ ایمانداری سے بتائیں. دو چار ہے بھائی. ارے جن کے دن برے ہوں وہ اچھے دن کا انتظار کرے. الحمدللہ ہمارے اچھے دن تو تبھی شروع ہو گئے تھے جب آمنہ کے لال دنیا میں تشریف لائے. یار یہ مسکال کس نے دی ابھی؟ نعرہ پورا لگاؤ. خواب مسکال کے زمانے گئے. چلیے اچھا ٹھیک ہے. آئیے دو چار شعر میں بھی اپنے مشائخین کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے پیش کر رہا ہوں. سماعت فرمائے. ایک بار محبت سے پورا مجمع مل کے درود پاک پڑھ لے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی سمجھے گا کیسے کیا ہے رتبہ غوث اعظم کا. کوئی سمجھے گا کیسے کیا ہے رتبہ غوث اعظم کا. کوئی سمجھے گا کیسے کیا ہے رتبہ غوث اعظم کا کہ خود کرنے طواف آیا ہے کعبہ غوث اعظم کا. کہ بول کیوں نہیں رہے بھائی؟ اللہ بولتے جاؤ. میں یہ ایسے ہی نہیں لفاظی نہیں ہے بلکہ تاریخ اٹھا کے دیکھو. ایک قافلہ مدینہ طیبہ کی جانب جا رہا ہے. سرکار غوث اعظم
आजम रज़ी अल्लाह अन्हु का बचपना है, दिल में ख्याल आ रहा है, अपने आका की बारगाह में अर्जी पेश कर रहे हैं कि या रसूल अल्लाह, दिल मचल रहा है, आका दिल तो तड़प रहा है कि मैं भी दयारे हबीब पे हाजिरी दूं, मैं भी तवाफ़े खाने काबा करूं, मगर असबाब ऐसे नहीं है, हालात ऐसे नहीं है। सरकार करम फरमाए, अब काफिले को छोड़ने का इरादा किया कि काफिले को छोड़ने, जहां तक ये काफिला नजर आएगा वहां तक छोड़ने जाओ। फिर ये ख्याल आया मैं तन्हा रह जाऊंगा, सोचा कि जहां तक काफिले का गर्दो गुबार नजर आएगा मैं अपने छत से खड़े होकर मदीने जाने वाले काफिले की ज़ियारत करता रहूंगा। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु बचपन के जमाने में अपनी छत पे खड़े हो जाते हैं। अब काफिला जा रहा है मक्कतुल मुकर्रमा के लिए, हुज्जाजे करम जा रहे हैं तवाफ़े खाने काबा करने के लिए। जहां तक गर्दो गुबार नजर आता रहा, गौसे आज़म देखते रहे। जब काफिले का गर्दो गुबार नजरों से गया, दिल में ख्याल आया कि ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई मेरे घर की तरफ घूम रहा हो। जब नजर उठा के देखा तो जिस काबे का वो तवाफ करने जा रहे थे वही खाने खुदा, वही काबतुल्लाह गौसे आज़म के घर का तवाफ कर रहा है। जब इस मंजर को बरेली के इमाम ने देखा तो पुकार उठे कि सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, और काबा करता है तवाफे दाएं वाला तेरा। वाह क्या मर्तबा, ऐ गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आ। या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई समझेगा, अब सुभान अल्लाह बोल रहा है, कोई समझेगा कैसे क्या है रुतबा गौसे आज़म का, कोई समझेगा कैसे क्या है रुतबा गौसे आज़म का, कि खुद करने तवाफ आया है काबा गौसे आज़म का, सुभान अल्लाह। है काबा गौसे आज़म का। और खुदा का हर वली अज़मत का एक मीनार है बेशक। आरिफ साहब को आप लोग अपने गौर से देख रहे हैं, इन्होंने बड़ी मोहब्बत से दावत दी और आप यकीन जाने उसके बाद कई एक प्रोग्राम इस तारीख किया है लेकिन नहीं लिया। अभी रात में ही मुझे फरखाबाद भी निकलना है। आप इनको कम देखिए, मुझे ज्यादा देखिए, क्योंकि इस वक्त तो मैं पढ़ रहा हूँ। पूरी तवज्जो चाहूँ। खुदा का हर वली अज़मत का एक मीनार है बेशक, मगर सबसे बुलंदी पर है तारा गौसे आज़म का, मगर सबसे बुलंदी पर है तारा गौसे आज़म का। और जिसे हो ख्वाहिश दो, जिसे हो ख्वाहिश दौलत इलाही तू अता कर दे, जिसे हो ख्वाहिश दौलत इलाही तू अता कर दे, हमारे वास्ते काफी है सदका गौसे आज़म का, हमारे वास्ते काफी है सदका गौसे आज़म का। आखिरी शेर मोहब्बतों के साथ समाज फरमाए, हमारे जिस्म पर हाकिम तो हो सकता है कोई भी,
मुलाहिजा फरमाए। अकीदत का मक्ता है और जो साहिब अकीदत है वही समझ पाएंगे। दिलों पे हम गुलामों के है कब्जा से आदम का, और सवाले कब्र करने जब नकीरैन आएंगे आमिर, सवाले कब्र करने जब नकीरैन आएंगे आमिर, खड़ा हो जाऊंगा लेकर मैं शिजरा से आलम का। सवाले कब्र करने जब नकीरैन आएंगे आमिर, खड़ा हो जाऊंगा लेकर मैं शिजरा से आदम का। और मुझे उम्मीद है कि शिजरे में भी काम हो जाएगा। है आपने सुना नहीं, तारीख बताती है कि सैयदना सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक धोबी था। जब उसका इंतकाल हुआ, फरिश्ते सवाल करने आए, उन्होंने कहा मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है? तो जवाब क्या होना चाहिए? रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह। उसने फरिश्तों ने सवाल किया मन रब्बुका, तो ये कहता मैं गौस पाक का धोबी। बोले ये कोई जवाब हुआ? सवाल किया जा रहा तुम्हारा रब कौन है, और जवाब दिया जा रहा गौसे आजम का धोबी। मादीनों का तुम्हारा दीन क्या है? का गौसे आजम का धोबी। एक बार, दो बार, तीन बार अल्लाह की बारगाह में फरिश्तों ने अर्ज किया परवरदिगार ये कैसा बंदा आया है जो भी आता है सीधे सीधे सवाल का जवाब देता है, खौफ से कांपता है, थरथराता है। मैं सवाल कर रहा हूँ मन रब्बु का, और ये कह रहा गौसे आजम का धोबी है, ये उल्टे सीधे जवाब दे रहा है। बारगाह खुदा से जवाब मिला, ए फरिश्तों जाओ जाओ, वो मेरे अब्दुल कादिर का चाहने वाला है, खाली उसका नाम लेने में मैंने उसकी मग़फ़िरत फरमाई। वो है सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अल्लाह ने वो तसर्रुफ दिया है, वो इख्तियार दिया है। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमा रहा है, अल्लाह इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार हो जाओ। अल्लाह ने पहले खबरदार किया। अरे ये खबरदार करने की जरूरत क्या है? डायरेक्ट कह दिया जाता इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, बेशक अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ है न कोई मलाल है, मगर नहीं नहीं अल्लाह कहा पहले खबरदार किया कि खबरदार हो जाओ। ये खबरदार किस लिए किया जा रहा है? आपने भी देखा होगा जब खबरदार किया जाता है तो कोई न कोई खतरा होता है, तब खबरदार किया जाता है। आप देख रहे हैं बहुत सारी जगह जगह खंबे लगे होते हैं, बिजली के खंबे लगे होते हैं, हर खंबे पर खबरदार नहीं लिखा होता है, हर खंबे पर डेंजरस नहीं लिखा होता है, हर खंबे पर सावधान नहीं लिखा रहता है, क्योंकि खंबे तो खंबे हैं, सब एक जैसे हैं। वही कदो कामत है, वही जसामत है, वही धात है, वही लोहा है, वही पिलर जैसे खड़े हैं, सब एक जैसे हैं, मगर हर एक जैसे को एक जैसा न समझना। पावर हाउस वालों से पूछो, ये सब एक जैसे हैं, मगर किसी किसी में खबरदार लिखा है, किसी किसी में डेंजरस लिखा है, किसी किसी में सावधान लिखा है। ये परवरदिगार वजह क्या है? कहा सावधान किया जा रहा है। पावर हाउस वालों ने कहा है सब एक जैसे, मगर इनमें करंट ज्यादा है, इनमें पावर ज्यादा है। अब बारगाहे रब से जवाब मिला कि हर किसी को अपने जैसा न समझना, वो तुम्हारे साथ चलता भी है, फिरता भी है, खाता भी है, लेटता भी है, सोता भी है, मगर अपने जैसा न समझना।
अगर कोई नजर आए तो उसे न समझना उसमें एक इम्तियाज रखा गया है। आम लोगों की तरह दो हाथ अल्लाह के वली के भी है, हमारे भी है, दो पैर वली के भी है, हमारे भी है, हमारी भी दो आंखें हैं, वली की भी दो आंखें हैं, हमारा भी सर है, उनका भी सर है, हमारे सीने में दिल है, उनके सीने में दिल है, मगर अल्लाह ने खबरदार कर दिया, अल्लाह इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। पता चला हम वली की तरह नहीं है। जब वली की तरह नहीं है तो नबी की तरह कहाँ हो सकते हैं? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। और अल्लाह ने अपने नबी को अपने नूर से बनाया और हमें बोलो भाई हमें खाक से बनाया, नबी को नूर से बनाया। और कैसे बनाया? हम इशारा दे रहे हैं, खाली बात आ गई इसलिए बता रहे। एक लम्हे में खाली कहा मोहम्मद हो जा, नूरे मुस्तफा जलवा। ये अल्लाह का कारखाना है कुदरत है। अब जरा अपने कारखाने कुदरत में आओ, अपने कारखाने में आओ। अगर हम कोई काम शुरू करते हैं, मसलन एक बोतल है, दिमाग में आया एक कोई ऐसी चीज तैयार की जाए जिसमें पानी महफूज रहे, खराब ना होने पाए, उसका नक्शा गोल होना चाहिए, उसमें ढक्कन भी होना चाहिए। सबसे पहले बड़े बड़े साहिब और राय को बुलाया जाएगा, दानिशवराने कौम मिल्लत को इकट्ठा किया जाएगा, पहले मीटिंग की जाएगी कि हम ऐसा ऐसा करना चाहते हैं, हमारा ये मिजाज है, हमारा ये मकसद है। सारे लोग अपनी अपनी राय देते हैं। राय देने के बाद जब मीटिंग में पास हो गया कि हाँ बिल्कुल बनाया जाए, उसकी सख्त जरूरत है। अब उसके बाद सबसे पहले जगह का तयन किया जाएगा, जमीन खरीदी जाएगी, जमीन तैयार की जाएगी। जब जमीन खरीद ली जाएगी अब उसके बाद कच्चे माल का भी इंतजाम किया जाएगा, पानी का इंतजाम किया जाएगा, वर्कर बुलाए जाएंगे। ये सब करते करते 6 महीने गुजर सकते हैं, साल भी गुजर सकता है। और जब मशीन आ जाती है अब उसके बाद उद्घाटन समारोह होता है, बड़े बड़े लोगों को इकट्ठा किया जाता है और उसके बाद कहा जाता है मशीन चालू की जाए। कच्चा माल डाला गया, मशीन का बटन दबाया गया, जैसे ही स्विच ऑन होता है मशीन चलती है, गर्दिश करती है, एक बोतल बन के सामने आ जाती है। मिसाल के तौर पर बोतल सामने आ गई, जैसे ही बोतल बन के तैयार हुई मैंने सबको दिखाया, भाई देखो ये बोतल तैयार हो गई है। हमारा मकसद था इसमें पानी महफूज किया जाए, पानी इसमें महफूज हो जाएगा, इसमें कोई नुकसान नहीं होगा। कहा बहुत अच्छा है, सबने पास कर दिया। जब ये बोतल पास हो गई कहा बिल्कुल ठीक है, ये सैंपल था, कहा अब और निकाला जाए। इसी के बाद दूसरा पीस आया, तीसरा आया, चौथा आया, 100 की बोतल सामने पड़ी है। अब इतने बड़े मजमे में आपसे कहा जाए जो 5वें नंबर पर बोतल मशीन से तैयार होकर निकली है, जरा बढ़ के आओ 5वें नंबर वाली बोतल निकालो। है इतने बड़े मजमे में कोई जो 5वें नंबर की बोतल निकाल सके? क्या बात है? अरे जवाब चाहिए, खामोशी नहीं। 5वें नंबर की बोतल अगर आपसे कहा जाए निकालो, आप में से कोई है निकालने वाला? क्यों हो? जी एक जैसी है, सारी बोतलें एक जैसी है, इसलिए हम नहीं निकाल सकते। अब और कारखाने कुदरत में हजरत आदम से लेकर आज तक के इंसानों में जितने भी इंसान आए हैं, मैं कहता हूँ कोई एक जैसा नजर नहीं आता। अब आओ दूर ना जाओ, ये हमारे मुफ्ती अहमद रजा साहब सामने जलवागर है, इनके जैसा पूरे बांदा में तलाश करो, कोई इनके जैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो बोलने में क्या जा रहा है? इनके जैसा दूसरा नहीं मिलेगा। कानपुर बड़ा शहर है, वहां तलाश करो, उम्मीद है मिल जाएगा। आप कहोगे नहीं मिलेगा और आगे आ जाओ, कलकत्ता बहुत बड़ी जगह है, इतनी कंजेस्टेड है, खाना
खूब मांगो मिलेगा, मगर रहने की जगह नहीं है। दो शख्स जो है यहाँ से गए और जाने के बाद पूरे शहर के अंदर चक्कर लगाते रहे, एक कमरा किराए का मिल जाए, मगर सुबह से शाम हो गई, कमरा न मिला। दूसरा दिन गुजर गया, कमरा न मिला। 3 दिन हो गए, खाना खूब मिल रहा है, कमरा नहीं मिल रहा है। काम तलाश किया, काम भी मिल गया, कमरा न मिला। अब सोचने लगे एक काम किया जाए, रात होते ही हम लोग जंगल की तरफ निकल जाया करेंगे, रात वहां गुजारेंगे, दिन भर ड्यूटी करेंगे, फिर उसके बाद रात गुजारेंगे, यही काम करेंगे। अब जंगल की तरफ जा रहे थे, रास्ते में देखा इतना बड़ा तरबूज पड़ा है सामने। उस तरबूज को देखा, ताईद गैबी समझी, सोचा अल्लाह का करम हो गया, आज खाना खरीदना नहीं पड़ेगा, तरबूज ही पे गुजारा हो जाएगा। तरबूज लेकर खुशी खुशी चले हैं, खुशी खुशी तरबूज लेके चले हैं। कुछ ही दूर गए थे, अचानक पैर में ठोकर लगी, और पैर में ठोकर लगी तो खुद भी गिरे, तरबूज भी गिरा। जैसे ही तरबूज गिरा, अचानक तरबूज के अंदर से धुआं ही धुआं निकला, और धुएं की तरफ देखा, एक बड़ा भारी इंसान सामने नजर आने लगा। पूछा तुम कौन हो? तरबूज से निकला हुआ कहने लगा मैं जिन हूं, क्या हुक्म है मेरे या अल्लाह? कहा क्या हुक्म है मेरे आका? उन्होंने कहा यार ये जिन है, जो कह देंगे वो हो जाएगा। आपस में मशवरा किया क्या मांगा जाए। दोनों ने मशवरा किया, उसके बाद कहने लगे भाई जिन भाई बस एक काम कर दो। कहा क्या? कलकत्ता शहर में एक कमरा दिला दे। जैसे ही कहा कलकत्ता शहर में एक कमरा दिला दो, जिन ने बड़े जोर से कहा लगाया, हंसने लगा। इन्होंने कहा हंस क्यों रहे हो? अरे कहा हंसू ना तो क्या करूं, अगर कमरा होता तो मैं तरबूज के अंदर थोड़ी बहुत कंजेस्टेड है कलकत्ता, वहां ढूंढोगे तो हजरत के जैसा मिलेगा। बोलो भाई मिलेगा? कलकत्ता में नहीं है, बंबई आओ। बंबई में जब ड्यूटी टाइम, ऑफिस टाइम पर दादर पे चढ़ो, इतना बड़ा मजमा, सर ही सर नजर आते हैं। दिल में ख्याल आता है एक शहर के एक मोहल्ले का जब ये आलम है तो मैदाने में शर में क्या आलम होगा, वहां तो कुछ नजर ही नहीं आएगा। दादर इतना बड़ा है, दादर ही नहीं पूरे बंबई के अंदर चिराग लेके ढूंढो, मौलाना अहमद रजा मिसबाही के जैसा दूसरा ना मिलेगा। दिल्ली राजधानी चले जाओ, वहां तलाश करो, इनके जैसा दूसरा नहीं है। कलकत्ता में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, मद्रास में तलाश करो, वहां इनके जैसा नहीं है। और आगे बढ़ जाओ, पूरे हिंदुस्तान में तलाश करो, इनके जैसा न मिलेगा। चीन चले जाओ, वहां नहीं है। पाकिस्तान में इनके जैसा नहीं है, अफगानिस्तान में नहीं है, रशिया में नहीं है, जापान में नहीं है, कायनात में नहीं है। और अगर मिल भी गया, इनका रंग साफ है, उसका रंग फीका पड़ जाएगा। इनका कद लंबा है, उसका कद छोटा हो जाएगा। इनकी आंखें बड़ी हैं, उसकी आंखें छोटी हो जाएगी। कहीं ना कहीं चेंजिंग हो जाएगी। अरे इनकी तरह क्या, हमारी तरह नहीं मिलेगा, तुम्हारी तरह नहीं मिलेगा, हुजूर जमाने मिल्लत की तरह नहीं मिलेगा। अब हमें कहने दिया जाए, जब अल्लाह ने हमारी तुम्हारे जैसा नहीं बनाया है तो अपने महबूब के जैसा कहां बनाया? अरे ये इंसान था, अरे खाली ये नहीं है जिसने तरबूज उठा लिया। हम अगर जा रहे होंगे हम भी तरबूज उठा लेंगे, मगर आओ तुम्हें वो मंजर भी दिखा रहा हूँ। जब एक नौजवान नौजवानी के आलम में नहीं को नातवा हालत में कदम कहीं रखता है, पड़ता कहीं है, जंगल बियाबान से बस्ती की तरफ आ रहा है, बस्ती की तरफ आ रहा है, बस्ती की तरफ आ रहा है। दिल में ख्याल आया, ए परवरदिगार कई दिन से फाके में हूँ, मौला तेरा करम हो जाए, शिकम सहरी हो जाए, मगर कुछ खाने को नहीं है। कदम बढ़ा दिया, चलो पानी पी लिया जाए, कुछ तो सैराबी हासिल मिलेगी। दरिया में जैसे ही पानी पीने का इरादा किया है, एक सुर्ख से बहता हुआ चला आ रहा है। जब से
بھوک نے بے قرار کر رکھا ہے، نقاہت بھی ہے، کمزوری بھی ہے، سیب کو کھا لیا، پھر دل میں خیال آیا اے ابو صالح تو نے سیب تو کھا لیا مگر کیا تجھے معلوم ہے اس کے باغ کا سیب ہے کہاں سے آ رہا ہے؟ کل اگر رب نے سوال کر دیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ فوراً اتنے سفر سے آ رہے تھے پلٹ کے پھر جا رہے ہیں کہ آخر سیب آیا کہاں سے، سیب آیا کہاں سے؟ اب سیب کے تعاقب میں جا رہے ہیں، دیکھا ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر درخت جھکے ہوئے ہیں، دریا میں جھکے ہوئے ہیں، سیب ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا ہو نہ ہو اسی باغ کا سیب ہے۔ اندر جاتے ہیں، سامنے دیکھا ایک نورانی صورت والے اللہ کے ولی جلوہ افروز ہیں۔ حضرت ابو صالح نے عالم نوجوانی میں السلام علیکم کہا، سامنے والے نے جواب دیا، جواب مل گیا، ولی نے ولی کو پہچان لیا، نظر سے نظر ملی اور دل ہی دل کہہ دیا، آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے، تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے۔ ولی نے ولی کو پہچان لیا، سلام کیا، جواب مل گیا، کہنے لگے حضور مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے خطا ہو گئی ہے، آپ کے باغ کا ایک سیب آپ کی اجازت کے بغیر کھا لیا ہے، آپ سے معافی طلب کرنے آیا ہو، یا تو معاف کر دیجئے یا جو چاہے وہ سزا دے دیجئے، آخرت کی سزا سے بچنا چاہتا ہو۔ ولی نے ولی کو پہچان لیا تھا، کہنے لگے اگر تم سزا معاف کرانا چاہتے ہو میری دو شرطیں ہیں۔ کہا حضور بتائیے۔ کہا پہلی شرط یہ ہے کہ تمہیں میرے باغ کی 12 سال نگہبانی کرنا پڑے گا۔ کتنے سال؟ 12 سال۔ اگر آپ میں سے کوئی ہوتا، ارے یہ ہمارے نفیس بھائی ہو، یہ کیا کہتے ہیں؟ تم 12 سال کہہ رہے ہو، ہم 12 گھنٹے نہیں کریں گے۔ کوئی ہے؟ مگر دیکھو تقویٰ کیا ہے۔ عرض کرنے لگے حضور مجھے منظور 12 سال کھیت کی رکھوالی کروں گا، باغ کی رکھوالی کروں گا۔ 6 سال گزر گئے، 6 سال گزر گئے۔ 6 سال کے بعد حضرت عبداللہ سومئی کے کچھ دوست آئے۔ جب دوست آئے انہوں نے آواز لگائی، اے ابو صالح کسی میٹھے پیڑ کے سیب لے آیا۔ گئے پلیٹ میں سجا کے میٹھے سے سیب لے کے آیا، کاٹا گیا، جیسے ہی کھایا کھٹا، دوسرا کھٹا، تیسرا کھٹا، سارے سیب کھٹے۔ دوست کہنے لگے کب سے ان کو رکھا ہے؟ کہا 6 سال ہو گئے۔ کہا 6 سال سے انہیں یہ نہ معلوم ہوا کہ کس درخت کے پھل میٹھے ہیں اور کس کے کھٹے ہیں؟ کیا انہوں نے چکھا نہیں؟ حضرت ابو صالح کہتے ہیں ایک کھا لیا تھا تو 12 سال کی سزا ملی، اس لیے پھر ہمت نہیں پڑی، ہمت نہیں پڑی۔ میں نے 6 سال سے کوئی سیب نہیں کھائی۔ حضرت ابو صالح سے کہا تم جاؤ، وہ مہمان کھانے لگے۔ حضرت عبداللہ سومئی سے جن کا باغ تھا کہنے لگے جھوٹ، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ 6 سال کوئی باغ میں رہے اور سیب نہ کھائے۔ حضرت عبداللہ سومئی نے کہا خبردار، سب کچھ سن سکتا ہوں مگر اسے جھوٹا نہیں کہنا، کیونکہ وہ جھوٹا نہیں ہے، اس کی حقیقت میں جانتا ہوں۔ ایک رات طوفان آیا تھا، اتنا زبردست طوفان کہ لوگوں کے گھر اڑے جا رہے تھے۔ رات میں نے ڈرتے ڈرتے اپنے گھر سے دیکھا کہ میرا باغ تو اجڑ ہی گیا ہوگا۔ جب میں نے باغ کی طرف دیکھا سارے چراغ بند تھے، مگر یہی واحد شخص تھا کہ جو باغ میں چراغ جلا کر قرآن مقدس کی تلاوت کر رہا تھا اور اس کا چراغ گل نہیں ہو رہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جس نے غوث الورا کانفرنس ایسا شخص کہاں جھوٹ بول سکتا ہے؟ اللہ اللہ، ایسا مقدس ایسا شخص کون ہو سکتا ہے؟ صاحب تقویٰ ہے۔ 12 سال گزر جانے کے بعد حضرت عبداللہ سومئی نے رشتہ طے کر دیا اور بتا دیا اے بیٹا سن لو، جس سے رشتہ کر رہے ہو وہ میری بیٹی ہے، میری دوشیزہ ہے، میری شہزادی ہے، مگر ہاتھوں سے کہانی ہے۔
समझ रहे हैं? हाथों से लगड़ी लूली है, कहा वो हाथों से लूली है, पैरों से लगड़ी है। अरे दिए रहो यार। कहा हाथों से लगड़ी है, लूली है, पैरों से लगड़ी है, जबान से गूंगी है, कानों से बहरी है, आंखों से अंधी है। अब बताओ क्या तैयार हो रिश्ता करने के लिए? क्या हुजूर सब तैयार हो, बस खाली आप सजा माफ फरमा दीजिए। अब रिश्ता हो गया, निकाह पढ़ा दिया गया, रात का वक्त है, हुजरे उरूसी में और दुल्हन के कमरे में अबू साले अंदर जाते हैं। जैसे ही अंदर कदम रखा, अंदर से आवाज आई, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक नजर उठा के देखा, पलट के वापस आ गए। हजरत अब्दुल्ला सौमई से कहने लगे, हुजूर किसी ने मजाक किया है, दुल्हन को बदल दिया है। कहा कैसे पता कि दुल्हन बदल गई? कहा हुजूर आपने कहा था पैरों से लगड़ी है, हाथों से लूली है, आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, जबान से गूंगी है। जब मैंने कदम रखा है, उसने सलाम किया है, नजर उठा के देखा है, वो पैरों से खड़ी थी, हाथ भी सलामत नजर आ रहे हैं, आंखें भी सलामत नजर आई है। मैं पलट के आ गया। हजरत अब्दुल्ला सौमई कहते हैं, सुनो सुनो, वो बिल्कुल सही है। अंधी कैसे है, बहरी कैसे है, गूंगी कैसे है, नाबीना कैसे है, ये भी सुन लो। पैरों से लगड़ी इसलिए है कि आज तक जिंदगी में कभी खिलाफे शरा उसका कदम नहीं निकला है, कभी उसने किसी की चीज अपने हाथों से नहीं उठाई है। कि इसलिए लूली है, अंधी इसलिए है, आज तक गैर महरम का चेहरा नहीं देखा है। गूंगी इसलिए है कि कभी उसने बदकलामी नहीं की है, कभी जबान दराजी नहीं की है, चुगली नहीं की है। अब जरा सोचो कि बाप ऐसा मुत्तकी हो और माँ ऐसी फारसा हो, तो बेटा भी अब्दुल कादिर जीलानी होता है। गौसे समझ नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौसे आज़म, जिसने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। वही गौसे आज़म है। जवानी तो जवानी है, खाली बचपना देख लो समझ में आ जाएगा। बचपने में ही आप मादरजाद वली हैं। विलायत की 3 किस्में होती हैं। एक वली वो होता है जो माँ के पेट से वली पैदा होता है, दूसरा वली वो होता है नवाफिल से खुश होकर अल्लाह उसे वली बना लेता है। जाहिर है जो नवाफिल का पाबंद होगा वो फराइज का तर्क करने वाला नहीं हो सकता है। और तीसरा वली वो होता है कि वली नजर डाल दे, वली बना दे। ये 3 किस्में हैं विलायत की। अब गौसे आजम की बारगाह है, वो मुकद्दस बारगाह है, यहाँ तो सबको विलायत मिला करती है। बारगाह गौसियत से विलायत ऐसे तकसीम होती है कि अगर घर में चोर घुस के आ जाता है, अल्लाह अल्लाह, चोर घुस के आया, आपने सुना गौसे आजम के घर में चोर घुस के आया, और जैसे ही घर में आया बड़ी उम्मीद लाया था। गौसपा कितना कीमती लिबास पहनते हैं, अगर किसी को मिल जाए तो कई नस्लें खा ले, तो जाहिर है बड़ा माल होगा, सोना भी होगा, चांदी भी होगा, जवाहरात भी होंगे, हीरे भी होंगे, ये भी होगा, वो भी होगा। इसी उम्मीद में घर में दाखिल हुआ चोरी करने के लिए। अच्छा, चोर जो चीज जहां होती वही तो मिलती है। अगर एक आलू का गोदाम हो, आप वहां घुस जाए तो केले मिलेंगे, आलू मिलेगा, आलू का गोदाम है, आलू मिलेंगे, और केले का गोदाम है तो सेब नहीं मिलेंगे। जो वहां खजाने में होगा वही तो मिलेगा। अब गौसे आजम की बारगाह में चोर आया, ख्याल तो बहुत कुछ है, मगर घर में माल क्या है? सोना नहीं मिल रहा है, चांदी नहीं नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रही है, हीरे जवाहरात नहीं दिख रहे हैं। अचानक दरवाजे में दस्तक होती है। जब दस्तक हुई है, दरवाजा खोलने के लिए गौसे आजम आगे बढ़े हैं। जब दरवाजा खोला है, एक साहब आए और कहने लगे, हुजूर यहाँ खड़खड़ की आवाज हुई है। चोर का दिल धड़कने लगा है। अरे भाई, उसका दिल होता ही कितना है, चटाई के अंदर लपट के सुन लेट जाता है कि कोई देख ना ले, कोई देख ना ले। अब आने वाले ने कहा, ए सरकारे गौसे पाक, फला जगह के अब्दाल का इंतकाल हो
चटाई हटाई गई, छोड़ को सामने लाया गया। गौसे आजम ने वो नजर डाली है कि वक्त का अबदाल बना दिया है। फरमाते हैं जाओ इसे ले जाओ और मुकद्दर। जो था वही तो दिया। आलू नहीं थे, बैगन नहीं थे, टमाटर सब्जी नहीं थी, फल फूल नहीं थे, चांदी सोना नहीं, विलायत घर में थी तो विलायत दे के रुखसत कर दिया कि जाओ, आए हो तो खाली ना जाओ। अगर तुम नियत लेके आए हो कुछ चुराने के लिए तो गौसे आजम तुम्हें विलायत दे। और एक बात बता दें आप, कितना नहीं कितनी देर हमें कितनी देर हो गई? अच्छा चलिए 10-15 मिनट। सरकार गौसे आजम की करामत इतनी है कि बयान करते करते आदमी थक जाएगा, रातें गुजर जाएंगी, मगर नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह ने सरकार गौसे आजम को वो मर्तबा दिया है सारे वलियों पर। सुभान अल्लाह। इधर तवज्जो, इधर अब हंसो पकाओ नहीं, थोड़ा 15 मिनट की बात। सरकार गौसे आजम का बचपना है, बचपने के जमाने में देखा, खाली बचपन दिखा रहा हूँ और इंशाअल्लाह मौका रहा तो फिर डायरेक्ट बचपन दिखा दूंगा, तकरीर खत्म हो जाएगी। गौसे आजम रज़ी अल्लाह अन्हु का बचपन है, बच्चों के साथ खेल रहे हैं। एक माँ अपने बच्चे को लेके आई, बच्चा हिचकियां ले रहा है, सांसें रुक रही हैं, रोती हुई अफसोस करती हुई गौसे आजम के नाना की बारगाह में पहुंच गई, हजरत अब्दुल्ला सोमई की बारगाह में। कहे हुजूर, मेरा शौहर आपके घर का मुरीद, मैं आपकी मुरीद। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि गौसे आजम के मुरीदों का मर्तबा क्या, ये बताऊंगा इंशाअल्लाह, इसको याद रखिएगा, अगर भूल जाए तो आप याद दिला दीजिएगा। मैं हम लोग आपके दर के मुरीद हैं। एक लौता बेटा हिचकियां ले रहा है, शौहर का इंतकाल हो गया, अगर ये बच्चा चला गया तो फिर हमारा कोई वारिस नहीं है। बारगाहे हजरत अब्दुल्ला सोमई में हाजिर हो गई। आपने आंखों को बंद किया, आसमान की तरफ देखा, उसके बाद फरमाते हैं इसकी किस्मत में एक सांस भी बाकी नहीं। जैसे ही उसने हाथ देखा तो वाकई रूह निकल चुका, मायूस होके जा रहा, आंख में आंसू। सामने पादरी ने देखा, कहने लगे माई, इस दरबार में जो भी आता है रोता हुआ आता है, हंसता हुआ जाता है। आज पहली औरत देख रहा हूं जो रोती हुई आई और रोती हुई जा रही। क्या हुआ? रो रो के बताया, बच्चा लेके आई थी, उस वक्त जिंदा था, जब अंदर गई रूह निकल चुकी, बच्चा खत्म हो गया। उस पादरी ने कहा एक बात बता, बताइए। कब वो सामने जो मैदान है उस मैदान में चली जाओ, बच्चे खेल रहे हैं, उसमें एक बच्चा ऐसा भी है जो बाकायदा इस उम्र में सर पे कुछ बांधे हुए है, अमामा बांधे हुए, 7 साल की उम्र है, सर पे अमामा है और आम बच्चों की तरह खेल नहीं है, बल्कि निराला खेल खेल रहा है। बच्चों को साथ के रखा है, बच्चों से कह दिया जब कहो मर जाओ। सारे बच्चे बन के लेट जाते हैं, सांस रोक लेते हैं और उसके बाद यहाँ से वहां तक वो बच्चा चक्कर लगाता है, पलट के आता है और कहता है कुम बेइज़्निल्लाह। बने पड़े बच्चे हैं, सब उठ के खड़े हो जाते हैं, यही उसका खेल जारी है। जब मौका मिले सारे बच्चे लेटे हो, अपने बच्चे को भी डाल देना, जरा तमाशा तो देखो होता क्या है। कहा बहुत अच्छा, डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है। माँ अपने आंसू पोंछती हुई जा रही है, सामने देखा मैदान में गौसे आजम के साथ कई बच्चे खेल रहे हैं। गौसे आजम ने कहा मर जाओ, सारे लेट जाते हैं, यहाँ से वहां तक गए, वापस पलट के आए, कहा कुम बेइज़्निल्लाह। सारे बच्चे उठ के खड़े हो गए, सधे हुए बच्चे थे। अब जब दोबारा ने कहा
रही है, आशाओं के दीपक चल रहे हैं, तमन्नाओं के चिराग रोशन है कि देखो शायद कुछ करिश्मा हो जाए, शायद कुछ काम बन जाए। गौसे आजम यहाँ से वहां तक गए और पलट के आए, और आने के बाद आपने हस्बे मामूल कहा कुम बिइज़्निल्लाह। जितने बने पड़े थे उठकर खड़े हो गए, जो मरा हुआ था वैसे ही पड़ा रहा। गौसे आजम ने कहा सब खड़े हो गए, ये क्यों ना उठा, कदमों की ठोकर मारी, कहा कुम बिइज़्निल्लाह, वैसे ही पड़ा रहा। अब गौसे आजम को बचपन में चलाना गया और ठोकर मार के कहते हैं कुम बिइज़्नी, मेरे हुक्म से उठ जा। इतना कहना था कि वो मुर्दा जिंदा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये गौसे आजम का बचपना है और आलमे जवानी में आए हैं तो मक़ताद के मिंबर पे खड़े होकर ऐलान कर रहे हैं कि कदमी हाज़िही अला कुल कदमी हाज़िही अला रक़बत कुल्ले वलियल्लाह। मेरा ये कदम अल्लाह के तमाम वलियों की गर्दनों पर है। हर वली तक ये आवाज पहुंची है, सारे दुनिया के कोने कोने में जितने वली थे सबके कानों में आवाज आई, और जब अजमेर के सुल्तान के कान में आवाज आई है, उसे शेर में कलमबंद यूं किया जा रहा है कि गौसे आजम से गरीब नवाज कह रहे हैं कि ऐ सरकारे गौसे आजम, ये दिल है, ये आंखें, ये सर है, जिगर है, जिधर चाहो रख दो कदम गौसे आजम। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। सरकारे गौसे आजम, बस आखिरी बात, आज का ये जो जलसा सजाया गया सरकारे गौसे आजम के नाम से सजाया गया। ये हमारे आरिफ निजामी साहब और इनके जितने भी साथी हैं, मैं सबके नाम नहीं जानता, सारे साथियों को शामिल कर रहा हूँ। अल्लाह ताला इन सब के उम्र में, इकबाल में, रोजगार में बरकत अता फरमाए। इन्होंने ये जलसा दूसरा जलसा है, दूसरा जलसा है, और मैं ये चाहूंगा इस जलसे को हर साल किया जाए और सारे लोग मिलकर ताउन करें, क्योंकि आपको मालूम नहीं है नियाज़े गौसे आजम, जलसे गौसे आजम का मकाम क्या है, मर्तबा क्या है। दुनिया में जगह जगह ग्यारहवीं होती है, जमाना उनका लंगर खा रहा है। हज़रत शेख अब्दुल हक चिश्ती कादरी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, जिनका मज़ार सौराष्ट्र में, फरमाते हैं मिस्र में एक शख्स रहता था। आप फरमाते हैं मैं वहां मौजूद था। शेख अब्दुल हक चिश्ती कादरी रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं कि मैं मिस्र में था उस वक्त आखिरी अय्याम में। पता चला यहाँ एक साहब है मिस्र में, इनका नाम है यूसुफ। क्या नाम है? याद करिए, यूसुफ मिस्री नाम, उनका नाम यूसुफ मिस्री। महफिल में बैठे थे, जैसे तकरीर हो रही है, हम तकरीर कर रहे हैं, आप सब सामाई सुन रहे हैं, तकरीर सुन रहे हैं। अब उसी दौरान तकरीर उलमा ने गौसे आजम की नियाज का मर्तबा बताया। बात दिल को लग गई, वहीं ठान दिया अब हम भी गौसे आजम की नियाज करें और हर साल करें। ठीक घर आए, दुआ की, ऐ सरकारे गौसे आजम, नियत तो कर ली है, करम ऐसा कीजिए कि हमारा काम बन जाए और हम पीछे ना हटे। अब उसने यूसुफ मिस्री ने काम शुरू कर दिया, पैसा जोड़ना शुरू कर दिया। साल भर तक पैसा जोड़ा। उस जमाने में बिरयानी तो थी, पुलाव रहा, पुलाव बनाया गया। और उसके बाद पूरे खानदान, यूसुफ मिस्री का जितना खानदान था, सबकी दावत थी। लोगों ने बड़े शौक से खाया। अब हज़रत यूसुफ मिस्री कहने लगे, मैंने दिल में दुआ की है, परवरदिगार सरकारे गौसे आजम का करम हो जाए, बारगाहे गौसियत माप में मैं शान से 11वीं कराना चाहता हूँ कि खाली मेरा खानदान न खाए, बल्कि सारे मोहल्ले वालों की भी दावत करूं। ये बात भी पहुंच गई, मकबूल हो गई। अगला साल आया, अगले साल और शान शौकत से 11वीं हुई, पैसा जोड़ा जा रहा है, हर बार निकाला जा रहा है। अब और शान से हुई, मोहल्ले वालों की भी दावत, खानदान वालों की भी दावत। फिर दिल में ख्याल किया, ए सरकारे गौसे पाक और करम हो जाए, सारी
बस्ती की दावत करना चाहता हूँ, नियाज आपकी हो, दावत सारी बस्ती की हो, आपके नाम से पूरी बस्ती को खिलाना चाहता हूँ। अल्लाह ने माल में और तरक्की दी, पूरी बस्ती की दावत हो गई। फिर दिल में ख्याल आया, सरकार गौसे पाक और आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ खाली ये बस्ती नहीं, अतराफ के लोग भी आए और वो भी आपकी नियाज को तनावुल फरमाए। जब यहाँ पे दुआ मांगी, वहां से बीवी आई, कहने लगी आप पैसा जोड़ते हैं, साल भर इकट्ठा करते हैं, अब हमने तय किया है हम भी साल भर पैसा इकट्ठा करके आपके हवाले करेंगे। बेटा लौटता हुआ आया, उसने कहा मैं भी पैसा जोड़ूंगा, मेरा पैसा भी इकट्ठा हो गया। अब इस शान से गौसे आजम की नियाज हो रही है, लोगों को तबर्रुक खिलाया जा रहा है कि लोग इंतजार कर रहे हैं, साल भर इंतजार करते हैं। अब यूसुफ मिस्री के यहाँ 11वीं का वक्त, इतने दिन बचे हैं, अब इतने दिन बचे हैं, अब इतने घंटे बचे हैं, इतनी शान के साथ गौस की नियाज कराई जा रही है। फिर वो वक्त भी आया, बड़े शान से लोग इंतजार किया करते थे। हजरत शेख अब्दुल हक फरमाते हैं उस साल में वहां मौजूद था। यूसुफ मिस्री बीमार हो गए, रात का वक्त है, इशा के बाद बीमारी ने इतना ज्यादा असर दिखाया कि वो अपनी जान से मायूस हो गए। अपने बड़े बेटे को बुलाया, आए मेरे लखते जिगर आसार अच्छे नजर नहीं आते, ऐसा लगता है वक्त आखिर करीब आ गया है। ये मेरे लाल कल 11वीं है, ध्यान रखना लोग मेहमान आएंगे, अगर खुदा न खास्ता मेरी रूह निकल जाए, मैं दुनिया से चला जाऊं, आने वाले को तकलीफ न होना चाहिए। मेरा लाशा कमरे में रख देना, ताला लगा देना, अगर कोई सवाल करे कि कहाँ है यूसुफ तो बता देना आराम कर रहा है, और सारे लोगों को खाना खिलाना, घर वालों को भी न बताना। और याद रहे जब सारे लोग खा के चले जाए, मेरी वसीयत है कि चंद लुक़मे तू भी उठा लेना, फिर बाद में लोगों को बताना कि यूसुफ मिस्री का इंतकाल हो गया, अब वो दुनिया में नहीं है। रात गुजर रही है, सुबह का वक्त आ रहा है, अनकरीब वक्त है, फजर का वक्त करीब है। रूह कफ़से उनसरी से परवाज कर जाती है, बेटे की आंखों में अश्कों के धारे हैं, सीने पे पत्थर रख लिया, बाप की वसीयत को याद किया, अपने बाप के लाशे को कमरे में बंद करके ताला लगा दिया और खामोशी से अपने आंसू पोंछता हुआ वापस पलट आया। सुबह नमाज़े फज्र अदा की और हस्बे मामूल फातिहा का एहतमाम किया गया, सारा खाना तैयार है, आने वाले आ रहे हैं, एक एक करके सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में आ रहे हैं। लंगरे गौसिया जारी है, सब खा के चले गए, असर का वक्त करीब आ गया, अब कोई नजर नहीं आ रहा है। उस बेटे ने अपने बाप की वसीयत पे अमल करते हुए एक लुकमा उठाया था, दरवाजे पे दस्तक हुई, पूछा कौन है, कहा बेटा फकीर हूँ, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोला, सामने गुदड़ी पोश खड़ा हुआ है, एक फकीर खड़ा हुआ है, कहा बेटा ला गौस की नियाज का खाना मुझे भी तो खिला दे। अपने सामने का खाना पेश कर दिया, कहा अकेले नहीं खाऊंगा, अपने बाप को बोला हर साल तेरा बाप मेरे साथ खाता था, उसे बुला के ला। अब सब्र का पैमाना छलक गया, अश्कों के धारे निकल पड़े, कहा अब्बा अब इस दुनिया में नहीं है। कहा कहाँ है तेरा बाप? ताला खोला गया, अंदर फकीर को लेके गए, जैसे ही अंदर जाते हैं सुबह से लाशा पड़ा है, शाम का वक्त हो गया। उस फकीर ने हाथ पकड़ा और कहा उठ मेरे साथ खाना खिला, खाना खा ले। इतना कहना था कि सुबह से जो लाशा था उठकर बैठ जाता है। आने वाले फकीर ने चंद लुकमे लिए और जाने लगे, बेटे ने दामन पकड़ लिया, ए आने वाले, ए मुझ पर करम करने वाले, इतना तो बताते जाओ तुम हो कौन?
ہو چکا ہے. میرے رب نے پوچھا اے عبد القادر مانگو کیا مانگتے ہو؟ تو غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے اپنے رب سے کہا اے پروردگار اگر تو اپنے کرم سے مجھے جنت عطا فرمائے تو یہی چاہتا ہوں جنت میں میں اکیلے نہ جاؤں بلکہ سارے قیامت تک جتنے میرے مرید ہیں سب میرے پیچھے آئیں. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. یہ غوث اعظم کے مرید قادریوں کا آلہ ہے. اب کون کون یہاں قادری بتاؤ ذرا کون کون؟ الحمدللہ. اور نہیں ہو تو موقع بھی اچھا ہے, موقع بھی اچھا ہے. غوث اعظم اولاد علی, غوث اعظم اولاد علی ہیں, غوث اعظم نائب رسول ہیں, غریب نواز آل رسول ہیں. اور آج وہی سلسلہ یہاں تک آ گیا کہ کربلائے معلیٰ میں 72,000 کا لشکر آیا تھا. کس لیے آیا تھا؟ کہ خالی ہاتھ مل جائے. اے حسین ہاتھ میں ہاتھ دے دو. تیر بھی لائے ہیں, برچیاں بھی لائے ہیں, بھالے بھی لائے ہیں, ظلم و ستم کی بہت سارے آلات لے کے آئے ہیں کہ حسین کا ہاتھ مل جائے, آل رسول کا ہاتھ مل جائے. اتنا لشکر آیا, ہاتھ نہ پایا. مگر تم قسمت کے دھنی ہو کہ خالی عقیدت لے آؤ, آل حسین کا ہاتھ تمہیں مل جائے گا. اور آل حسین کا ہاتھ اسی کو تو پیری مریدی کہتے ہیں. آج لوگ کہتے ہیں پیری مریدی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. غوث اعظم جن کا حال یہ تھا کہ 40 برس جنہوں نے خراسان کے جنگلوں میں ایسی عبادت کی ہے, عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے, اور یہ عالم ہو گیا تھا, ایسا مجاہدہ کیا ہے جب سر میں الا اللہ لگاتے تھے منہ سے چنگاری نکلتی تھی, جنگلوں میں آگ لگ جایا کرتی تھی. اب اتنا بڑا درجہ مل جانے کے بعد کیا ضرورت تھی مرید ہونے کی؟ اس کے باوجود اللہ کی بارگاہ سے بھیجا گیا ہے. خواجہ خضر آتے ہیں, تعلیم دے کے چلے جاتے ہیں, مگر بارگاہ رب سے بھیجا گیا جاؤ میرا ایک بندہ ہے جو جنگل میں ہے, خراسان کے جنگل میں ہے, اسے مرید کر لو. مرید کرنے آتے ہیں. غوث اعظم نے کہا میں آپ کا مرید کیوں ہوں, مجھے مرید ہونے کی کیا ضرورت ہے, مجھے تو خواجہ خضر تعلیم دینے آتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے جاؤ, واپس کر دیا. ابو سعید واپس ہو جاتے ہیں. جب خواجہ خضر آتے ہیں بتایا غوث اعظم نے, ایک ابو سعید آئے تھے جو کہہ رہے تھے مرید ہو جاؤ تاکہ تمہیں کچھ مل جائے. کہنے لگے پھر تم نے کیا کہا؟ غوث اعظم کہتے ہیں میں نے کہہ دیا مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے, خواجہ خضر مجھے تعلیم دیا کرتے ہیں. خواجہ خضر فرماتے ہیں تمہیں خزانہ محمدی سے کچھ چاہیے ہے کہ نہیں؟ کہا کیوں نہیں چاہیے؟ ارے کہا خزانہ محمدی کی دولت چاہیے ہے تو وہ میرے پاس نہیں بلکہ ابو سعید کے پاس ملے گی, تمہارے پیر کے پاس ملے گی. واہ واہ واہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس لیے پیر کا ہونا بہت ضروری ہے. الحمدللہ آپ کے سامنے حضور جمال ملت, شیخ طریقت اور خود میرے مرشد اجازت بھی ہے حضرت سید خوشتر ربانی مد ظلہ النورانی, جن کا دست مبارک الحمدللہ سلسلہ بسلسلہ رسول اللہ کے دست مبارک تک جاتا ہے. اور اللہ کا فرمان ہے ید اللہ فوق ایدیہم, یہی تو مقبولیت ہے. یہاں آدمی الگ تھلگ ہے مگر جب کڑی سے کڑی جڑتی جاتی ہے تو پھر وہ وقت آ جاتا ہے کہ یہاں سے چلے ہیں تو بارگاہ رسول تک رسائی ہو جائے. تمام لوگوں کو داخلہ سلسلہ معرفت قادریہ چشتیہ ہونے کی صلاحیت عطا فرمائے. وما آمین الا البلاغ المبین. السلام علیکم.